السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الذی خلق الانسان فی احسن تقویم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، عزیز طلباء اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ اردو زبان کی قواعد پڑھ رہے ہیں، جس کے تعلق سے مختصر قواعد اردو نامی کتاب آپ کے زیر درس ہے۔ اس سے پہلے کے اسباق میں ہم نے علم ہجا کے بارے میں پڑھا ہے، اور اس کے بعد علم صرف کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، جس میں ہم نے لفظ کسے کہتے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں، لفظ موضوع کیا ہے، لفظ معمل کیا ہے، لفظ موضوع کی کتنی قسمیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھا تھا۔ لفظ موضوع کی ایک قسم کا نام ہے اسم۔ اسم کے متعلق ہمیں اس کی تعریف معلوم کی تھی، اور بناوٹ کے لحاظ سے ہم نے اس کی قسمیں بھی اس سے پہلے کے سبق میں پڑھا تھا۔ آج کا سبق علم صرف کے بارے میں ہے اور اسم کی قسموں کے بارے میں ہی ہے۔ جس طرح سے بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں ہیں، اسی طرح سے نوعیت کے اعتبار سے بھی اسم کی قسمیں ہیں۔ کتاب مختصر قواعد اردو اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں بھی نوعیت کے اعتبار سے اسم کو 5 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوعیت کے اعتبار سے اسم کی 5 قسمیں ہیں۔ چند مثالیں میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس پر دھیان دیں۔ ایک مثال ہے محمود بازار جاتا ہے۔ دوسری مثال ہے گنگا ہندوستان کی مشہور ندی ہے۔ تیسری مثال ہے لوہا زمین کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ چوتھی مثال ہے ہم مدرسہ میں پڑھتے ہیں، اور پانچویں مثال ہے بچپن بڑا معصوم ہوتا ہے۔ آپ نے ان مثالوں کو سنا۔ ان مثالوں میں لفظ ہے محمود، گنگا، ہندوستان اور ندی، بچپن، لوہا، زمین، مدرسہ، یہ تمام اسما ہیں، لیکن ان میں سے ہر اسم کا الگ الگ نام ہے۔ لفظ ندی جو دوسری مثال میں ہے، یہ ندی کی تمام جنس کو شامل ہے۔ جتنی بھی ندیاں ہیں ہمارے ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں، ندی کا لفظ ہر ایک کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو ایسا اسم جس سے کسی چیز کے متعلق اس کی پوری جنس کے بارے میں معلوم ہو، تو ایسے اسم کو کہا جاتا ہے اسم عام یا اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی تعریف کرتے ہوئے استاد محترم شیخ عزیز الرحمن سلفی، جو اس کتاب کے مرتب اور مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اسم عام وہ اسم ہے جس سے کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام نہ سمجھا جائے، بلکہ پوری جنس مراد ہو۔ اس کو انگریزی میں کامن ناؤن کہا جاتا ہے، اور ہندی میں اس کو ذاتی واچک سنگیا کہتے ہیں۔ اسم کی دوسری قسم کا نام ہے اسم خاص یا اسم معرفہ۔ اسم خاص یا اسم معرفہ ایسے اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص کا نام ہو، یا کسی چیز کا نام ہو، یا کسی جگہ کا نام ہو۔ جیسے محمود بازار جاتا ہے، تو اس میں محمود ایک لڑکے کا نام ہے یا ایک آدمی کا نام ہے۔ گنگا ہندوستان کی مشہور ندی ہے، تو گنگا یہ ہندوستان کی ایک ندی کا نام ہے جو بہت ہی مشہور ہے، اور ہندوستان یہ ایک ملک کا نام ہے۔ تو اس طرح کے جو اسما ہوتے ہیں جو کسی شخص کا یا کسی جگہ کا یا کسی
चीज़ का नाम हो तो उसे इसमें ख़ास या इसमें मारफा कहा जाता है। इसमें मारफा की तारीफ़ शेख मोहतरम ने इस तरह से की है कि इसमें ख़ास वो इस्म है जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या जगह का नाम समझा जाए। नौइयत के एतबार से इस्म की तीसरी किस्म का नाम है इसमें जमा। इसमें जमा जैसे एक मिसाल में है कि हम मदरसा में पढ़ते हैं, या एक लफ्ज़ है कौम, एक लफ्ज़ है जमाअत। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये हकीकत में तो वाहिद हैं, लेकिन इनका जो मदलूल है, इनसे जो चीज़ समझी जाती है, उसमें बहुत सारे अफराद शामिल होते हैं। जैसे कौम, तो कौम में ज़ैद भी है, बकर भी है, अमर भी है, खालिद भी है, माजिद भी है, शकीला भी है, जमीला भी है, और बहुत सारे अशख़ास हैं। तो ये लफ्ज़ जो है कौम, ये अगरचे वाहिद है और इसकी जमा अक़वाम आती है, लेकिन जब लफ्ज़ कौम बोला जाता है तो इससे कई अफराद मुराद होते हैं, जिनसे कई अफराद या कई चीज़ें जिसमें शामिल हों, जिनसे कई चीज़ों के बारे में जानकारी हो, तो ऐसे इस्म को कहा जाता है इसमें जमा। उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि इसमें जमा वो इस्म है जो चंद चीज़ों या शख्सों के मजमूए का नाम होता है, जैसे मदरसा है। नौइयत के एतबार से इस्म की चौथी किस्म का नाम है इसमें मादा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ज़मीन से निकलती हैं, मादी चीज़ें कहलाती हैं। वो ज़मीन से लोहा निकलता है, ज़मीन से सोना निकलता है, तांबा निकलता है, पीतल निकलता है, स्टील निकलता है, वगैरह वगैरह। धात जिसको कहा जाता है हिंदी में धात। तो ऐसा नाम जो किसी मादे को बताए, जिससे किसी मादे का इल्म हो, या जो चीज़ किसी मादी चीज़ से बनी हुई हो, तो ऐसे इस्म का नाम है इसमें मादा। जैसे लोहा है, तांबा है, पीतल है, चांदी है, सोना है, निक्कल है, वगैरह हो गए। तो ऐसे अस्मा को हम इसमें मादा कहते हैं। नौइयत के एतबार से इस्म की पांचवी किस्म का नाम है इसमें कैफियत। इसमें कैफियत ऐसे इस्म को कहते हैं जो किसी इस्म की हालत बतलाता है, या सिफत बतलाता है, या आदत बतलाता है। मिसाल के तौर पर बचपन बड़ा मासूम होता है, तो अब बचपन से एक इस्म की कैफियत मालूम होती है, एक इस्म की हालत मालूम होती है, इसलिए लफ्ज़ बचपन ये इसमें कैफियत कहलाता है। साहिब किताब ने इसमें कैफियत की तारीफ़ इस तरह से की है कि इसमें कैफियत वो इस्म है जिससे किसी इस्म की हालत, सिफत और आदत मालूम हो। ये एक सबक की आप रीडिंग समझें, हमने कर दिया है, आपने सुना है, लेकिन अच्छी तरह से इसे हम बोर्ड पर ही समझ सकते हैं, इसलिए मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ और आपको बोर्ड पर इस्म की इन पांचों किस्मों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए हम बोर्ड पर चल रहे हैं। इस्म की किस्में मैंने आपको बताया था कि नौइयत के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं। नौइयत के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है इसमें नकरा। दूसरी किस्म का नाम है इसमें मारिफा। अच्छा, इसमें नकरा या इसमें आम, इसमें मारिफा या इसमें
खास। तीसरी किस्म का नाम है इसमें जमा। चौथी किस्म का नाम है इसमें मादा। और पांचवी किस्म का नाम है इसमें कैफियत। अब देखिए, इसमें नकरा या इसमें आम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे पूरी शय की जिन्स का पता चलता है। मिसाल के तौर पर हम लेते हैं फल। फल, अब देखिए आप, फल में सेब भी शामिल है, संतरा भी शामिल है, केला भी शामिल है, तरबूज भी शामिल है, अनानास भी शामिल है। फल की पूरी जिन्स इसमें शामिल है। इसी तरह से कपड़ा। कपड़ा, अब कपड़ा में हर तरह के कपड़े शामिल हैं, चाहे वो कॉटन का हो, चाहे पॉलिस्टर का हो, चाहे उसका रंग सफ़ेद हो, चाहे उसका रंग काला हो, चाहे उसका रंग सुर्ख हो, चाहे वो इंडिया का बना हुआ हो, चाहे दूसरे मुल्क का बना हुआ हो। कपड़ा में हर तरह का कपड़ा शामिल है। इसी तरह से है नदी। अब नदी, नदी को आप देखें तो नदी जो है, इसके अंदर भी पूरी जिनसे नदी शामिल है। ये किसी खास नदी का नाम नहीं है। इसमें गंगा भी है, इसमें जमुना भी है, इसमें ब्रह्मपुत्र भी है, इसमें दरियाए सतलुज भी है, दरियाए सिंध भी है। सभी दरिया और सभी नदियाँ लफ्ज़ नदी में शामिल हैं। तो ऐसे इसम जिससे पूरी जिनसे शय, किसी भी चीज़ की पूरी जिन्स के बारे में मालूमात हासिल हो, तो उसे हम कहते हैं इसमें नकरा या इसमें आम। दूसरी किस्म इसमें मारफा या इसमें ख़ास जो है। इसमें मारफा या इसमें ख़ास, ये नाम होता है किसी शख्स का, किसी चीज़ का या किसी जगह का। मिसाल के तौर पर महमूद, महमूद, गंगा, मुंबई, दिल्ली वगैरह। अब आप देखें कि महमूद ये एक आदमी का नाम है, और गंगा एक नदी का नाम है, मुंबई एक शहर का नाम है, और दिल्ली भी एक शहर का नाम है। तो इस तरह के जो नाम होते हैं किसी शख्स के या किसी जगह के या किसी चीज़ के, तो उन्हें हम इसमें मारफा या इसमें ख़ास कहते हैं। तीसरी किस्म है इसमें जमा। इसमें जमा में मिसाल आप देख लें, जैसे है कौम, दर्जा, जमात, झुंड वगैरह। मैंने भी बताया था कि कौम का जो लफ्ज़ है, इसमें पूरी मुस्लिम कौम के लोग शामिल होते हैं, या हिंदू कौम के लिए अगर बोला जाता है तो पूरी हिंदू कौम के लोग शामिल होते हैं। हिंदुस्तानी कौम के लिए अगर बोला जाए तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग शामिल होते हैं। तो इस तरह का लफ्ज़, कौम का लफ्ज़ जो है, यही इसमें जमा कहलाता है। दर्जा, दर्जा कक्षा के माने में या एक ही क्लास के माने में। तो एक क्लास में कई कई बच्चे होते हैं। अब ये दर्जा का लफ्ज़ जो होता है, या जमात का लफ्ज़ जो होता है, या झुंड का जो लफ्ज़ जो होता है, ये सब जमा पर दलालत करते हैं। ये इसमें जमा होते हैं, यानी होते तो हैं वाहिद, लेकिन इनका मदलूल जमा हुआ करता है। इसी तरह से है इसमें मादा। मैंने मिसाल में बताया था कि जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी वगैरह, ये मादी चीज़ें हैं, आमतौर से ज़मीन से बरामद होती हैं, ज़मीन से निकलती हैं। तो मादा जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, ये नाम है। तो इस तरह के नामों को इसमें मादा कहा जाता है। और इसम की पांचवी किस्म है इसमें
कैफियत। इसमें कैफियत ये किसी इसम की हालत या उसकी सिफत को बताता है, तो ऐसे इसम को हम इसमें कैफियत कहते हैं। जैसे बचपन, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा वगैरह। अब ये जो अस्मा हैं, बचपन, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, अब इन सारे इसमों से किसी ना किसी इसम की कैफियत मालूम होती है, हालत या सिफत का इल्म होता है, तो ऐसे इसम को कहा जाता है इसमें कैफियत। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और जो कुछ आपको बताया और समझाया गया है, इसे आपने अपने जहन के कंप्यूटर में महफूज कर लिया होगा। इसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि यही चीज़ आपको बाकायदा सवालों जवाब की सूरत में भी लिखा दूँ, ताकि आप उन्हें अपनी कापियों में भी महफूज कर लें और जब ज़रूरत पड़े तो आप देख लें, जब आपका इम्तिहान हो तो आप जो है उसका इयादा कर लें और अच्छी तरह से उसे याद कर लें, ताकि इम्तिहान में आप अच्छे नंबरात से कामयाब व कामरा हो सकें। तो अब आपको चाहिए कि आप भी अपनी अपनी कापियाँ निकाल लें, अपने कलम निकाल लें। मैं सवालों जवाब की शक्ल में इन्हें लिख रहा हूँ, आप भी इन्हें बहुत ही सफाई और सुथराई के साथ लिखें, ताकि बाद में पढ़ने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। सवाल: नौइयत के एतबार से इस्म की कितनी किस्में हैं और कौन कौन? हर एक की तारीफ मिसालों के साथ लिखिए। जवाब: नौइयत के एतबार से इस्म की 5 किस्में हैं। नंबर 1, इसमें नकरा या इसमें आम। नंबर 2, इसमें मारफा या इसमें खास। नंबर 3, इसमें जमा। नंबर 4, इसमें मादा। नंबर 5, इसमें कैफियत। इसमें नकरा या इसमें आम। इसमें नकरा या इसमें आम उस इस्म को कहते हैं जिससे आम चीज़ों के नाम मालूम हों, जैसे नदी, शहर, फल, मछली, कपड़ा वगैरह। इसमें नकरा या इसमें आम को अंग्रेज़ी में कॉमन नाउन और हिंदी में इसे
जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें मार्फा, नंबर 2, इसमें मार्फा या इसमें खास, इसमें मार्फा या इसमें खास उस इस्म को कहते हैं जो किसी शख्स या चीज़ या जगह का नाम होता है। अंग्रेजी में इसे PROPER प्रॉपर नाउन, अंग्रेजी में इसे प्रॉपर नाउन और हिंदी में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे महमूद, हामिद, गंगा, मुंबई, दिल्ली वगैरह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, नौइयत के एतबार से इस्म की जो किस्में हैं उन्हें हमने समझा है। हम इन किस्मों की तारीफ़ बाकायदा सवाल व जवाब की सूरत में लिख रहे थे, जिनमें से हमने 2 के मुतालिक लिख लिया है। 3 किस्मों की तारीफ़ रह गई है, लेकिन चूँकि आज के सबक के लिए मुतय्यन किया गया वक्त ख़त्म हो गया है, इसलिए आज हम यहीं पर सबक का इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।